اننتناگ پارلیمانی نشست میں دوسرے مرحلے کے انتخابات کے تحت ضلع کلگام میں آج ووٹنگ ہوئی۔ ہوم شالی بگ اور دیوسر اسمبلی حلقوں میں آج ووٹنگ ہوئی۔ اگرچہ ہوم شالی بگ میں پولنگ کی شرح کم رہی، تاہم دیوسر کے کچھ علاقوں میں خاصی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ اس کی وجہ سے کلگام ضلع میں پولنگ کی مجموعی شرح میں کچھ حد تک اضافہ ہوا۔ انتہائی طور پر حساس قرار دی گئی ہوم شالی بگ اسمبلی نشست میں پولنگ سینٹروں کے قیام کو لے کر سوالات اٹھائے گئے۔ پولنگ کے عمل کو شفاف اور پرامن طریقے سے انجام دینے کی غرض سے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے۔ ہوم شالی بگ میں 1.14 اور دیوسر میں 16.84% پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اکثر ووٹروں کا کہنا تھا کہ دفعہ 370 کے تحفظ کو یقینی بنانے کی غرض سے انہوں نے ووٹ ڈالا۔ کئی ووٹران نے روزگار اور تعمیر و ترقی سے جڑے مسائل کا ازالہ کرنے پر زور دیا۔ دان مسئلہ کشمیر گوس حل گھن یہ گھس حالات سدرن یہ گھس یہ جوان گھس بچن روزگار گوس ملن غریبن گوس سعادت واتن تو ام موجود چناون۔ یہاں پر بے روزگاری ہے، ختم ہونی چاہیے۔ پڑھے لکھے نوجوان ہیں یہاں پر بہت سارے، ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے۔ کوئی گن اٹھانے پہ مجبور ہو گیا ہے، یا تو کیا کہ کوئی مطلب باہر سے ڈگری ہولڈر آئے ہوئے، آپ دیکھو کیسے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں۔ اب ہم اپنا ووٹ اب اس لیے ویٹ کر رہے ہیں یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے کہ جلدی سے نیشن ٹھیک ہو جائیں گے، اپنا سب کچھ ہم یہاں پر ٹھیک کر سکیں اور دفعہ 370 یہ ہمارا بچنا چاہیے۔ جو ہم نے آج ووٹ ڈالا بہت اچھا لگا۔ جو بھی نیتا آئے گا وہ سب کی بھلائی کرے گا، جو بھی آئے گا ادھر تو دیش کے لیے اچھا ہی کرے گا۔ کوئی گاؤں کے لیے کوئی فائدہ ہونا چاہیے، بچوں کے لیے کوئی سہولت ہو جائے۔ پڑھے لکھے بچے بیکار پڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی آتا کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس وقت بولتے ہیں چلو جی چلو، بعد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں کے 50 لڑکے جو بی ایڈ کر کے BL کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے۔ بوڑھوں کو کوئی پریشانی ہے۔ سکھوں کا ایک پنڈ ہے کولگام ڈسٹرکٹ کولگام میں، اس کی کوئی پوچھ بات نہیں ہے۔ ہماری روڈ دیکھو ہمارا کیا ہے، ہماری سڑکوں دیکھو کیا، ہماری گلیاں دیکھو کیا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، کیا ہے نہیں۔ اس وقت بولتے ہیں ہاں جی تم چاچا ہے، ماما ہے، دادا ہے، اس وقت بولتے ہیں، بعد میں کوئی پوچھتا تو سالہ میں نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کا کام۔ ہمارے گاؤں میں کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی لینی کوئی دینی۔ ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے ہمارا، گلیاں کوچے دیکھ لو ادھر کیا حالت ہے، اچھا سڑک دیکھ لو کیا حالت ہے، اچھا باقی پانی کے لیے وہ بھی گندے پانی ملتا ہے۔ اننتناگ پارلیمانی نشست کے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں پھر ایک بار ووٹران کی شرح توقع سے قدرے کم رہی۔ اگرچہ دن بھر کئی مقامات پر لوگوں نے اپنے جمہوری حق کا استعمال کیا، لیکن ہوم شالی بگ میں پولنگ عملہ دن بھر ووٹران کی راہ تکتا نظر آیا۔ ووٹران کے اس ملے جلے رد عمل نے یقینی طور پر جنوبی کشمیر کے سیاسی میدان میں ایک نئی ہلچل پیدا کی ہے۔ ایسے میں اب تیسرے مرحلے کے انتخابات زیادہ اہمیت کے حامل ہوئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ جنوبی کشمیر کی اس اہم ترین نشست کا تاج کس کے سر پر ہوگا۔ نیوز 18 کے لیے ہوم شالی بگ کولگام سے مدثر قادری۔ اننتناگ پارلیمانی نشست کے دوسرے مرحلے کے لیے ضلع کلگام میں آج صبح 7 بجے پولنگ شروع ہوئی تھی۔ حلقہ انتخاب نور آباد اور دیوسر میں اچھی پولنگ دیکھنے کو ملی۔ ہوم شالی بگ اور کلگام میں پولنگ کی شرح کم رہی۔ چند ایک مقامات پر پتھراؤ کے واقعات پیش آئے۔ کئی مقامات پر بائیکاٹ کا اثر بھی رہا۔ منجگام، چمر، کیموہ اور دیگر کئی مقامات پر پتھراؤ کے واقعات رونما ہوئے۔ ضلع میں سیکیورٹی کے کڑے بندوبست کیے گئے تھے۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ ووٹ کی کافی اہمیت ہے۔ کئی لیڈران نے انتظامیہ کو صاف و شفاف انتخابات نہ کرانے کا الزام لگایا۔ NC لیڈر عمران نبی ڈار نے بھی آج اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ طرح کا انتظام یا جو مینجمنٹ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہونی چاہیے تھی وہ ساری تتر بتر ہے۔ سب سے بڑا نقصان جو ہے 15-15 20-20 بوتھ جو کلب کیے گئے ہیں اور فار فلنگ 8-8 9-9 کلومیٹر سے لوگوں کو آنا ہے، تو جمہوریت جتنا نزدیک ہوتا، جمہوری سسٹم جتنا نزدیک ہوتا اتنا لوگوں کو آسانی ہوتی، مگر یہ ایک بنا دیا انہوں نے ایک فوبیا اور دور دور سے لا کر کے کلبنگ کر کے، وہ ایک پہلا نقصان ہے۔ اور کلگام کا جو ڈاؤن پولنگ ہے یہ کسی کے سمجھ میں نہیں، وہاں تو کافی کشمکش تھی کمپین کے درمیان، اور جتنا امید لگایا جا رہا تھا نور آباد سے، یہ چونکہ پورے ساؤتھ کشمیر میں سب سے بڑی کانسٹیچوئنسی ہے اور سب سے بڑی آبادی ہے، 1 لاکھ ووٹ ہے اس میں، اور
इसमें जितना तादाद एक्सपेक्ट कर रहे थे टर्न आउट का उतना नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली बार यहाँ पर देखा कि काफ़ी बाइकाट और स्टोन पेल्टिंग और दूसरी चीज़ें, मुझे लगता है ज़्यादातर लोकली राइवलरीज काम किया है, जिसकी वजह से वोटर को वो सेफ्टी नहीं मिली कि वो वोट डालने जाए। तो इसलिए जो ओवरऑल टर्न आउट अभी दिखाई दे रहा है ज़िले का, वो मुझे लगता है कि बिलो एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि आने वाला जो कल है, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म आएंगे, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जो हालात ख़राब है, यहाँ हमारी बदकिस्मती है सारी जम्मू कश्मीर में, इसको ठीक करने के लिए हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म काम करेंगे। इस उम्मीद से यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग निकले हैं, कश्मीर के लोग खासकर, कि ताकि जो आने वाला कल है उसमें हमारे बच्चे सेफ रहें, हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारा जो मसले कश्मीर है उसका हल के लिए कुछ न कुछ कर सकेंगे। जुल्म हो रहा है, इसलिए हमें अमन चाहिए, इसलिए हम वोट डाल रहे हैं। हमारे मतलब सब बरादरी यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, कोई किसी का जोर नहीं है, कोई किसी का कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है, हम अपने मन मर्जी से वोट डाल रहे हैं। मतलब हमारे अब जो नौजवान कहीं कहीं पे कुछ फंसे हुए हैं, उनके लिए हम वोट डाल रहे हैं। हमारी सरकार की यही अपील है कि हमारे नौजवान न फंसे। हमारे यहाँ पावर बिजली की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम सरकार को मतलब यही अपील करते हैं हमारी जो प्रॉब्लम है वो दूर करिए। कड़े हिफाजती बंदोबस्त के बीचों बीच अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त के दूसरे मरहले के लिए आज जिला कुलगाम की 4 निशस्तों पर वोट डाले गए, जबकि इसमें मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। कहीं वोटरान कतारों में नजर आ रहे थे तो कहीं पोलिंग बूथ खाली खाली थे। बाइकाट और अच्छी खासी पोलिंग के चलते अवाम ने अपनी राय जाहिर की। वोटिंग की कम शरह से ये बात साफ आया है कि सियासतदान आम लोगों का मिजाज परखने में चूक गए हैं, जबकि इसका खमियाजा आगे चलकर किसी भी उम्मीदवार को हार के जरिए भुगतना पड़ सकता है। मंजू मुबारक के साथ ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। जिला कुलगाम में आज वोटिंग के दौरान चंद एक मकामात पर झड़पें रूनुमा हुई। मुश्तइल अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया, उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। जिले में इस बीच चंद मुजाहिरीन के जख्मी होने की इतला है। कई पोलिंग मराकज पर बाइकआउट काफी असर देखने को मिला। नूराबाद के कई पोलिंग मराकज पर भी बाइकआउट का असर देखने को मिला। यहाँ काफी कम तादाद में लोगों ने वोट डाले। उड़ा सुबह से नहीं सर, कोई नहीं। तो ये कौन सा स्टेशन है? ये है एविल बी, 19 एविल बी। कितने टोटल वोट हैं? 663। तो कोई वोट पॉल नहीं हुआ सुबह से। और हमशालीबुग इलाके में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब कड़वनी कुलगाम में मुश्तइल अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच पुरतशद्दुद झड़पें रूनुमा हुई। तफसीलात के मुताबिक मुश्तइल नौजवानों ने इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर पथराव किया। उन्हें मुंतशिर करने के लिए फोर्सेस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इसके नतीजे में 4 अफराद के जख्मी होने की इतला है। जख्मियों को अनंतनाग के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से शदीद तौर पर जख्मी 2 अफराद को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। उधर शमसीपुरा इलाके से भी पथराव और पुरतशद्दुद झड़पों की इतलात मौसूल हुई हैं। तमाम सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बाद में हालात को काबू में किया गया। जंगलपुरा केमों से भी झड़पों की इतला है। और इधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए सैकड़ों माइग्रेंट भी हक रायदही के अहल थे। जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले माइग्रेंटों के लिए भी पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। जम्मू में भी कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए पोलिंग मराकज कायम थे। माइग्रेंट वोटरों, खास तौर पर नौजवान वोटरों में खासा जोश देखा गया। 64% माइग्रेंटों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माइग्रेंटों के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई हुकूमत उनकी बाइज्जत वादी वापसी के लिए इक़दाम करेगी। कई वोटरों का इल्जाम था कि तमाम लवाज़िमात पूरे करने के बावजूद वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब थे और वो वोट देने से महरूम रहे। उन्होंने एम फॉर्म खत्म करने की मांग की। होंगी, सबको अपना अपना हक मिलेगा। आधार नंबर से इशू होते हैं, सबको अपना आधार नंबर दिया जाता है। वहाँ पे अच्छा लगता है। आधों को जैसे नाम देते हैं पर लिस्ट में नाम आता नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो वो अपना वोट हक दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी, तो अच्छा लगा हमको वोट दे के। कलगाम सठा आराम गर भगवान सोरे दितमुत मगर ये वोट आय बस सान बच्चे ग नौकरी लगन संकटस मज परेशानी मज हना आमत। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम हिंदू 400 वोट है। 400 वोट में से लगभग कोई ये फार्म वार्म भर के हमारे 30 या 40 वोट आए हैं।
बाकी वोट कहाँ गए, सब कुछ हमने भर दिया, एम फार्म भर दिया, सब कुछ भर दिया, हमारे पास कार्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन वोटों का नाम ही नहीं है कहीं। हमारी डिमांड ये है कि ये एम फार्म खत्म कर दो। जब हमारे पास ये वोटर आइडेंटिटी शिनाख्ती कार्ड है या आधार कार्ड है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारा वोट क्यों नहीं है? इसको यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ का जो ये जेएंड के नहीं, खाली कश्मीर का जो ये तंत्र है या यहाँ का रिलीफ डिपार्टमेंट, ये जिम्मेवार है इसका। रिलीफ डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। उधमपुर में भी माइग्रेंट पंडित वोटरों के लिए खुसूसी पोलिंग मरकज कायम किया गया था। म्यूनिसिपल टाउन हॉल में कायम मॉडल पोलिंग मरकज पर कुलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले माइग्रेंटों ने अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार के इंतखाब के अमल में हिस्सा लिया। पोलिंग मरकज पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर वोटरों ने कहा कि उन्होंने अमन व एकजहती के लिए वोट डाला है। उन्होंने कहा कि वो अपने आबाई मकाम वापस लौटने के ख्वाह है। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के रहने वाले हैं और फैसल शुरपुरा में रहते थे पहले। इस वक्त हम उधमपुर से मैंने वोट कास्ट किया क्योंकि डेवलपमेंट हो जाए, अच्छी सरकार आएगी जो हमारे मसले हल करे और हमें अपने घरों में वापस लेगे। हम 30 साल से यहाँ माइग्रेंट है, मतलब अपने ही स्टेट में हम माइग्रेंट है। हम ये चाहते हैं अच्छी सरकार आए जो डेवलपमेंट करेगी तो हम अपने अपने घरों में वापस जा सके। हम ये मैसेज देते हैं लोगों को कि एकजुट हो जाओ, तरक्की के लिए सोचो। हम बेसिकली कुलगाम होम शालीबो कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक इलेक्शन कमीशन कि उन्होंने हमारे लिए फैसिलिटी यहाँ पे लाई। वी स्टिल फील दैट वी आर कनेक्टेड और होमलैंड दैट इज कश्मीर। सर हम एक ही चीज़ चाहते हैं, हम JNK की खुशहाली चाहते हैं, हम चाहते हैं पीस आए, प्रॉस्पेरिटी हो। जैसे हम यूथ को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, वो काम हम यहीं पे कर पाए और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे पीस आए, रेजोल्यूशन हो कश्मीर वैली का। एंड नो डाउट वी आर सफरिंग फ्रॉम एक्सॉडस फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। वी वांट एनी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है वो हमारा सक्सेसफुल वापस से हमें वहाँ पे सेटल करे। मैंने वोट कास्ट किया सिर्फ प्रोग्रेस के लिए और पीस के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पीस है और जब पीस आएगी उसके बाद ही प्रोग्रेस आएगी। नाजरीन, अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के तहत आज जिला कुलगाम में वोटिंग हुई। यहां भी पोलिंग की शरह कम रही। चंद एक मकामात पर झड़पों की भी खबर है। मनोज कौल, एडिटर जम्मू कश्मीर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, कैसे देखते हैं आप दिन भर के आज के हालात को? देखिए जिलानी, सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे कि आज जो पोलिंग परसेंटेज है जो कुलगाम में 10.6% जो पोलिंग हुई है। इससे पहले जो पहला मरहला हुआ था अनंतनाग पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ 13.6% पोलिंग हुई थी। तो मजमूई तौर पर जो 2 मराहिल हैं इस लोकसभा नशिस्त के लिए अनंतनाग और कुलगाम जिलों में कुल मिलाकर मजमूई तौर पर 12.3% पोलिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अभी तीसरा मरहला बाकी है जिसमें शोपियान और पुलवामा में वोट डाले जाने वाले हैं 6 तारीख को। उसके बाद उसमें देखा जाएगा कि वहाँ कितने वोटर सामने आते हैं और उसके बाद मजमूई जो फीसद है इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो सामने आ जाएगा। जहाँ तक आज के दिन की बात है जिलानी, तो आज का दिन जो है जो जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, जो चाहे इलेक्शन कमीशन को या सियासतदानों को शायद ये एक्सपेक्टेशन नहीं रही होगी कि इतना कम पोलिंग परसेंटेज होगा, लेकिन हम पहले से ही कह रहे थे कि जिस तरह के हालात कुलगाम ज़िले में हैं उससे ऐसा लगता है कि जो पहला मरहला हुआ था जिसमें अनंतनाग में पोलिंग हुई थी, जो उससे कम जो पोलिंग है वो यहाँ एक्सपेक्टेड की जा रही थी कि इस तरह से जहाँ इसकी जो अमन कानून की सूरत हाल इस पूरे इलाके में है और वैसा ही आज देखने को मिला। अगर आप पूरा कश्मीर वैली में आज तक जितनी पोलिंग हुई है उसके आंकड़े भी देखेंगे तो उसमें यह है कि आज जिस तरह का वायलेंस हुआ 2-3 जगहों पर, जिस तरह से पथराव के वाक़यात पेश आए या बाकी जो शिकायतें हैं वो की जा रही हैं, तो उससे ये साफ जाहिर है कि जो कुलगाम का जो ज़िला था वो इतना आसान नहीं था वहाँ पर इंतखाबात करना। और आज का जो अभी तक के इंतखाबात हुए हैं सबसे कम जो पोलिंग हुई है वो कुलगाम ज़िले में ही हुई है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके ज़रूर थे जिलानी कि जहाँ पर हमने देखा कि वोटर जो हैं भारी तादाद में आए थे और उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया। हालांकि बहुत सारे ऐसे इलाके थे जैसे कि हमारी जो टीम्स हैं वह जगह जगह पे जहां जो उन्होंने विजुअल्स दिखाए और जो वोटर से बात की तो उसे खुल के ये सामने आ गया कि जो मजमूई सूरत हाल है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में वो इतनी बेहतर नहीं है कि ज़्यादा लोग जो है वो वोट करने के लिए आ जाते हैं। हालांकि जो सियासतदान हैं उनका ये भी कहना था कि जो मैनेजमेंट है, जो इलेक्शन कमीशन है या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह से उन्होंने इंतजाम किए थे वो शायद सही नहीं थे कि पोलिंग बूथ जो है वो मर्ज किए गए थे, उसकी वजह से भी
पोलिंग परसेंटेज जो है कम रहा। हाँ, ये हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह आज पोलिंग हुई है, हालांकि कुछ जगहों पर तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए, लेकिन मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन मुतमईन ज़रूर होगा। हालांकि परसेंटेज जो पोल परसेंटेज जो है वो ज़्यादा खुश आयन नहीं है, वो उससे ज़्यादा खुशी या मसरत इलेक्शन कमीशन को नहीं हुई होगी, लेकिन मजमूई तौर पर पोलिंग जो पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई तो उससे इलेक्शन कमीशन खासा मुतमईन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस जानकारी के लिए। थे मनोज कौल, एडिटर जम्मू कश्मीर। जैसा कि उन्होंने बताया कि पोलिंग की शरह कम रही और इलेक्शन कमीशन के लिए ये एक चैलेंजिंग रहा, लेकिन पुरअमन रहे। कुछ वाकयात को लेकर वोटिंग जरूरी, एक मरहला और अनंतनाग के लिए बाकी है। और आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज कुलगाम में हुई पोलिंग की तफसीलात से वाकिफ कराया। डिस्ट्रिक्ट में 3,44,244, इसमें मेल वोटर्स थे 1.79 लाख, फीमेल वोटर्स 1.64 लाख, थर्ड जेंडर वोटर्स 13, टोटल पोलिंग स्टेशंस 433। जिन लोगों को एम फॉर्म्स इशू हुआ था माइग्रेंट वोटर्स थे 2870, वुमेन पोलिंग स्टेशंस थे 4, ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन, दैट मीन्स पर एसी 1 पोलिंग स्टेशन, और मॉडल पोलिंग स्टेशन से 20। न्यू वोटर्स थे 28,761, जिसमें से 18 से 21 वाले थे 10,130। टोटल वोट्स आज पोल हुए 35,524, दैट इज रफली 10.3%। जनूबी कश्मीर की अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए आज दूसरे मरहले की पोलिंग हुई। जिला कुलगाम में आज हुई वोटिंग के दौरान कई सीनियर सियासतदानों और साबिक वुज़रा ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर इन अफराद ने वोट डाला। CPIM के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने भी आज अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और साबिक रियासती वजीर सकीनतु ने भी आज अपना ही वोट डाला। PDP लीडर और राज्यसभा मेंबर नजीर लावे ने भी अपना आज जिला कुलगाम में वोटिंग के दौरान अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। कई दीगर सरकर्दा शख्सियात ने भी आज अपना वोट दिया। PDP के सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी ने उम्मीद जताई है कि अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त में 2 मराहिल के दौरान पोलिंग की कम शरह के बावजूद PDP फातेह जमात के तौर पर उभरेगी। देवसर के नावपुरा अखरन में अपना वोट डालने के बाद सरताज मदनी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कम वोटिंग शरह के लिए मौजूदा हालात जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि NC ने रियासत की खुसूसी पोजीशन को जक पहुंचाया है। मामला जो कश्मीर में है तो उसकी वजह से लोगों के दिलों में दिमाग में कुछ खौफ सा है, तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता खौफ हट जाएगा। मुझे लग रहा हम जीत जाएंगे, इंशाल्लाह हमारी पार्टी जीत जाएगी। तो दोनों लो है वो सही है, लेकिन हम इसके बावजूद भी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। So you are already confident? Yes, yes. तो जिस तरह से इल्जाम तराशियां हो रही है बीजेपी के बाद अब कांग्रेस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी PDP पर उंगलियां उठा रही है, तो ऐसे में किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कुछ रहा नहीं अब लोगों के लिए बोलने के लिए, क्योंकि जो भी चाहे जम्मू कश्मीर का स्टेटस हो, स्पेशल स्टेटस हो, या जो भी मामला हो जम्मू कश्मीर में, आजकल जो भी हुआ है, चाहे स्पेशल स्टेटस को जख्म पहुंचाए गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए, इसलिए आजकल इनके पास कुछ स्पेशल वो मुद्दा नहीं है, तो अब ये फरोई मामला पर उतर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और साबिक रुकन असम्बली अब्दुल मजीद बट लारमी ने भी जिला कुलगाम में अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ खास बातचीत के दौरान उन्होंने कई वोटिंग मशीनों के खराब होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कई इलाकों के लिए पोलिंग मराकज काफी दूर कायम किए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ पे अभी बहुत सी शिकायतें मुझे आई हैं कि जो मशीनें हैं ये बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई है। तो बिल्कुल हमने पहले भी इस पर उंगली उठाई थी, हमने पहले ही कहा था कि ये EVM मशीनें जो है इसे यहाँ पे काम नहीं कर रहे, यहाँ पे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है। तो वो तो चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी मर्जी, वो क्या कर रहे हैं। रहा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह रहमान जीत के बिल्कुल करीब है। पहले जो अनंतनाग पार्लिमानी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हुए तो वहाँ पे भी हम इंशाल्लाह रहमान लीड में हैं। आज कुलगाम चारों कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह रहमान लीड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया की जानब से इंतखाबात के दौरान नामुनासिब इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि ये इस बात की अक्कास है कि जनूबी कश्मीर में पोल बाइकआउट को तक़वियत दी जा रही है। उनका कहना है कि इसका बराह रास्त असर असम्बली इंतखाबात के इनेकाद पर ज़ाहिर होगा। मसूदी ने इन बातों का इजहार देवसर और होमशालीबुग इलाकों में अपने दौरे के दौरान किया। उनके हमरा NC लीडर पीर मोहम्मद
हुसैन भी थे। मसूदी ने कुछ मकामात पर देर से पोलिंग शुरू करने और ईवीएम की शफाफियत के हवाले से सवाल उठाए। मशीन ही नहीं चल रही है। देखिए, एसेंशियली ये मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से एनफोर्स्ड एक बाइकआउट है। 8-8 किलोमीटर दूर पोलिंग स्टेशन शिफ्ट किया गया और कई एक बार लास्ट मोमेंट पर रात को पोलिंग स्टेशन शिफ्ट किया गया है। अब देखिए, एक हमारा है तो नाले आगोरा, उसका भी पोलिंग स्टेशन 5 किलोमीटर दूर क्या कहता है शिफ्ट। तो ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकन्वीनियंट बनाया जा रहा है वोटर के लिए वोट डालना। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला इमीडिएट क्या है, किसके कहने पर ये सब किया जा रहा है। ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल से मुश्किल तरीन बना रही है वोटर के लिए अपना वोट कास्ट करना। शायद इसका ये हदफ है कि हम लो टर्न आउट करें ताकि गवर्नर इंतजामिया की मुद्दत जो है वो लंबी हो जाए और ये असम्बली इलेक्शन और मौखर करें। ये इस आर्ग्यूमेंट पर कि देखिए जी, वोटिंग टर्न आउट जो था वो लो था और ये एनफोर्स किया जा रहा है। अब देखिए, आप यहाँ देखिए, पालपोरा का पोलिंग स्टेशन यहाँ पर है, 1 किलोमीटर दूर है। कैसे आएगा वोटर, कैसे इन्फॉर्म आएगा, बुजुर्ग वोटर आएगा या इवन जवान भी आएगा। When you have to put a distance of few kilometers to cast your vote, तो एसेंशियली यहाँ के वोटर को डिप्राइव किया जा रहा है ऑफ हिज राइट टू वोट। डोडा टाउन हॉल में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक्किद हुआ। पंचायत कॉन्फ्रेंस के रियासती चेयरमैन शफकत मीर ने इजलास की सदारत की। डोडा से पंचों और सरपंचों ने शिरकत की और मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल किया। सरपंचों ने शिकायत की कि 6 महीने गुजर जाने के बावजूद अभी तक इन्हें सरकारी फंड्स नहीं मिले हैं। उन्होंने पंचों और सरपंचों की तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा किया। से इंस्टीट्यूशन को डिसएम्पावर किया जा रहा है, जो अफसरशाही जो रियासत के अंदर कायम हो चुकी है गवर्नर राज के अंदर। तो हम गवर्नर साहब से ये कहना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था, जो आपने ओथ सेरेमनी में आपने कहा था कि प्रोटोकॉल कायम किया जाएगा, क्या प्रोटोकॉल यही है कि एक डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के अंदर एक सरपंच को धक्के मार के वहां से बाहर निकालता है और दूसरी डिप्टी कमिश्नर आपकी रियासी के अंदर एक लेडी सरपंच को वहां से धक्के मार के बाहर निकालती है? यही प्रोटोकॉल का वादा किया था। और हम गवर्नर साहब से ये भी पूछना चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले आपने कहा था कि हर पंचायत को 20 लाख रुपया CDF दिया जाएगा, हमें उसका जवाब दिया जाए, वो CDF कहाँ है? आज सुबह जिला पुलवामा के आरिगाम इलाके में मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर की लाश पुरस्कार तौर पर पानी में पाई गई है। 35 साला नंदा मुंडा नामी मजदूर की लाश आरिगाम इलाके के नाले में पाई गई है। इसके बाद मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर इसका पोस्टमार्टम किया। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू कर दी गई है। महलूक के जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशान नहीं पाए गए हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से श्रीनगर में एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। डोगरा महाराजा की जानिब से शॉल सनत पर महसूल लगाने के खिलाफ एहतजाज के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 30 कारीगरों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कश्मीर चैम्बर्स ने कहा कि इस वक्त तारीख खुद को दोहरा रही है। अब GST से ये सनत तबाह हो रही है। कश्मीर चैम्बर ने दस्तकारी सनत पर आयद 12% GST को सिफर करने का मुतालबा किया। हमारे जो अनसंग हीरोज थे, उस वक्त उन्होंने डोगरा शाही में एक टैक्स रिजीम इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर वो महीने के 5-6 रुपये कमाते थे तो 3-4 रुपये वो टैक्स पे लग चला था। तो उस खिलाफ उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की, जिसके बिना पर ये ट्रेड चला आज तक। मगर आप देख रहे हैं GST जब से लगा हुआ है, ये टैक्स रिजीम में फिर से आ गया है और हाथों पे टैक्स रिजीम लगा हुआ है। विद द रिजल्ट क्या है कि ये जो पश्मीना, आप हमारे जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है GST, और जो हमारे शॉल्स इंडस्ट्री है वो बिल्कुल हाई वैल्यू, और जब आप 12% इस पे लगाते हैं, ये प्रोडक्ट बहुत कम बिकता है मार्केट में। तो इसलिए हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन दी है और वो हम चाहते हैं कि इस आज के दिन हम लोगों को याद दिला दे कि ये टैक्स जो इस शॉल इंडस्ट्री पे लगाया हुआ है ये चलने वाला नहीं है। तब भी उन्होंने आवाज़ की थी बुलंद, और आज भी हम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि टैक्स और शॉल एक साथ नहीं जा सकते। फ्रूट मंडी पारिमपुरा श्रीनगर में आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की गई। कश्मीर में सब्जी व मेवा ताजरों का कहना है कि सिविल ट्रैफिक के लिए कौमी शाहराह बंद रहने से उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि माल बरदार गाड़ियों को रोकने से मेवा और सब्जियां खराब हो रही हैं। उन्होंने हुकूमत से कौमी शाहराह से मुताल्लिक फैसला वापस लेने का मुतालबा किया।
हमें मजबूर किया गया आज कारोबार बंद करने के लिए। हम रोज़मर्रा की चीज़ें जो है मतलब सब्जी फ्रूट वो बेचते हैं, क्योंकि हमारे कई दिनों से ये बल्कि लास्ट 3 मंथ से जो नेशनल हाईवे है उस पर खामखा उन्होंने रुकावटें खड़ी की, हमारी गाड़ियों को खामखा वहाँ रोक के तब माल हमारे को आने की इजाज़त देते हैं जब वो सड़ जाता है। हमें हज़ारों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा, तो ये एहजाज उसके लिए है कि हम गवर्नमेंट दौरान शब नामालूम अफराद ने कुपवाड़ा के गोशी इलाके में एक मेवा बाग में बड़े पैमाने पर दरख्तों को काट दिया है। इस वाक़े से बाग मालिक गम मातम में डूब गए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मुतासरीन ने इस वाक़े की आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी बरसों की मेहनत को चंद मिनटों में तबाह कर दिया गया। उन्होंने SSP कुपवाड़ा से इस मामले में ज़ाती मदाखलत की अपील की। योर आज रात त्रोमुत यम तन बाग टिट समझ नज आव न कहें क्या दलील गई अस क्या कोर्मुत कंस ज़तियात न वैसे तकरीबन ज़तियात वतियात कंस कंस तजली वतनमज आज बह जनाब सुबह योर ये वुच मे 2-3 कुछ गोड़ थे निम जान माज ये टक्यो बासान बे मे लजमस कह शुड या कह चीज अदिल बह द्रास ब्रोह पे मे कुछ अकिस पे नजर मतलब फेरम द्रास बेकिस कुछ तो गसा गसा गोस सारे कुचन तलस गोस बह तो मे सारे कुचन टक तल सारे यी वुचान गोस ये पता लग पुलिस तक गुजारिश कर गुजारिश मगर कम गोर यह नुकसान ये आज वो बाग षटनस कह सह वो सोबस पगह अंदर अचन यमो चटक वुक सिोद निक निक बच आज गई 20 वरी अत बागस वुचा बुत वुकनस कुछ तालान कोरुक तुम सोचो यह पाने कर अपील कार्रवाई करो। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने आज गुलमर्ग का दौरा करके यहां ट्रेड यूनियन के ओहदेदारों और दीगर लोगों से मुलाकात की। लोगों ने शाह को गुलमर्ग गंडोला में सयाहों के लिए 100% ऑनलाइन टिकट मामले से मुताल्लिक जानकारी दी। शाह ने मुतल्लिका अथॉरिटी और गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। फारूक शाह ने गुलमर्ग में काम कर रहे लोगों से भी अपील की कि यहां सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। गवर्नमेंट और अथॉरिटीज से भी ये गुजारिश करता हूं, जो भी हमारे यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए जो मैं ये कहूँगा कि उनको इनके मुश्किलात को दूर करना चाहिए, इनको सुनना चाहिए। लिहाजा हम सबकी ये कोशिश है कि टूरिस्ट आए यहाँ, हम टूरिस्ट को जो है मेहमान की कदर करेंगे और उनको जो है कोई मुश्किलात इंशाल्लाह नहीं आए। उधर DPN के सरबराह गुलाम हसन मीर ने भी सयाहती मकाम गुलमर्ग में केबल कॉरपोरेशन की जानब से गुलमर्ग गंडोला में सयाहों के लिए 100% ऑनलाइन टिकट करने के फैसले पर रद्दमल जाहिर किया। मीर ने कहा कि इस मसले को लेकर तमाम मुताल्लिकीन के साथ बातचीत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मसले को बहुत जल्द हल किया जाए ताकि लोगों का रोजगार मुतासर न हो। मैंने शमीम साहब जो कि MD केबल कॉरपोरेशन है, मेरा उनको मशवरा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे घोड़े वाला है, चाहे गाइड है या अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करके कोई आर्डर निकाला जाए ताकि आम लोगों को सख्ती न हो। बदरन मागाम में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर और मरकजी महकमे सकाफत के इश्तराक से मुनक़दा 3 रोज़ा अदबी जश्न समनबल अख्तिताम पजीर हुआ। अख्तामी तकरीब पर दूरदर्शन के साबिक डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रफीक मसूदी मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में वादी के अतराफुकनाफ से आए सरकर्दा अदीबों, शायरों, फनकारों और दानिश्वरों ने शिरकत की। मसूदी ने समनबल का ये जश्न नौजवान शोरा के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दिया। तासुराती मबाहिसा भी इस मौके पर मुनक्किद हुआ। ये कहने में कोई आर नहीं है या कोई ऐसी कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी कि गुलशन कल्चरल फोरम ऑड्स के अगेंस्ट काम करते हुए बहुत आगे चला गया है। और अब की बार खसूसियत ये रही है कि 3 रोज़ा इस जश्न में जहाँ 9 आमूज़ कलमकार थे, वहाँ बुज़ुर्ग भी थे, उसी तरह एक नया टैलेंट भी सामने आया। मेरे ख्याल में गुलशन बदल रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह रिटायर्ड जस्टिस बिलाल नाज़की ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। उन्होंने वुमेंस कॉलेज में 600 तालिबात के लिए महज एक बैतुल खला होने से मुताल्लिक मीडिया में आई खबर का नोटिस लिया और कॉलेज इंतजामिया को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर कॉलेज में इजाफी बैतुल खला तामीर करें। जस्टिस नाज़की का कहना था कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी को लेकर भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। गुलमर्ग में महकमे सेहत में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स ने
रुकी पड़ी तनख्वाहें वागजार न करने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि जुलाई 2014 से उनकी तनख्वाहें वागजार नहीं की गई हैं। इन मुलाजमीन का कहना है कि ड्यूटी देने के बावजूद महकमा उनकी तनख्वाहें वागजार करने की खातिर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मुलाजमीन ने महकमे सेहत के सेक्रेटरी और डायरेक्टर से अपील की कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहें वागजार की जाएं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल के तलबा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी तलबा ने यूनिवर्सिटी पर इल्जाम आयद किया कि साल 2018 में मुनक्कदा तीसरे सेमेस्टर के इम्तिहान में 90% तलबा को फेल कर दिया गया है। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी हुक्काम से राब्ते में हैं और अगर किसी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफी हुई है तो उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। ड्रग डी एडिक्शन वीक के आगाज पर बारामूला में एक सेमिनार और रैली का इनकाद किया गया। सेमिनार में तलबा, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, सिविल सोसाइटी के अरकान और दीगर अफराद ने शिरकत की। डीसी बारामूला डॉक्टर जी नितू ने सेमिनार से खिताब करते हुए मुंशियात के नुकसानात का जिक्र किया और कहा कि नौजवानों को इस बुरी लानत से बचाने की जरूरत है। इससे पहले डीसी ने इस ज़िमन में निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से बासलाहियत खिलाड़ियों के इंतखाब के मकसद से गांदरबल में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। जिले भर से तकरीबन 100 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच चंदना और गडोरा के बीच खेला गया। एसएसपी गांदरबल क्रिकेटर परवेज रसूल और रांची खिलाड़ी साइम मुस्तफा ने मैच का मुशाहिदा किया। जेकेसीए की जानिब से गुज़श्ता साल टैलेंट हंट का आगाज किया गया था ताकि रियासत के नौजवान खिलाड़ियों को यकसा मौके फराहम करते हुए बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब किया जा सके। दामना एडवेंचर सुपुर ने महकमे जंगलात के इश्तराक से वतलाब सांगड़ी ता रामपुर गांव तक एक रोजा ट्रेनिंग का एहतमाम किया। 20 शुरका ने इसमें हिस्सा लिया। बशीर दामना ने ट्रैकर्स की क़यादत की। इस ग्रुप में सबसे कम उम्र 7 साल लड़का और एक 80 साल के ज़ईफ शख्स ने भी हिस्सा लिया और दोनों ने कामयाबी के साथ अपनी मुहिम अंजाम दी। समाजी कारकुन हाजी इस्माइल ने झंडी दिखाई। शुरका को तोहफ़े दिए गए।